اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل میں مسلم برادر پاکستانی برادرز، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان اور خیر سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیر سکے۔ میرے پاکستانیوں، امید ہے میری ساری مسلم امت کے بہن بھائیوں نے امید ہے خیریت سے عید الاضحیٰ گزاری ہو کہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہے عید الاضحیٰ کے پر ہم آئے آپ کے ساتھ، ہم نے بات چیت کی اسلامک ٹون کے اندر، ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی اسلام کے بارے میں کچھ بات چیت کی، عید الاضحیٰ کی ایک امپورٹنس کے اوپر ہم نے بات چیت کی، پوسٹ سے متعلق ہم نے اسلام سے متعلق پولیٹکس کو سائڈ پہ رکھا، پاکستان کے لینے دینے کو سائڈ پہ رکھا، فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر بات کی۔ امید ہے آپ گزر گئی ہے عید، آپ لوگوں نے انجوائمنٹ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے عید الاضحیٰ بنائی ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو سارے مسلمان بہن بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جہاں جہاں مسلمان بہن بھائی اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو، مجھے پتہ ہے ان کے اوپر سب سے اس وقت مشکل ٹائم ہے، انہوں نے عید الاضحیٰ تو نہیں بنائی ہوگی، ان کے پاس نہ کپڑے نہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ اپنی زندگی کے ٹف پیس کے اندر ہے، ٹف ٹائم کے اندر ہے، انہوں نے یہ عید الاضحیٰ نہیں بنائی ہوگی۔ لیکن جب بھی اپنے سارے مسلمان بہن بھائیوں کو میں عید الاضحیٰ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی میرے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں ان سب کو میری طرف سے ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ مبارکباد۔ عید الاضحیٰ اب تو گزر گئی ہے، اب ہم واپسی اپنے کام کی طرف آ جاتے ہیں جہاں ہم نے عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے چھوڑا تھا، اب ہم وہیں سے عید الاضحیٰ کے بعد کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، آپ کو ایک ایک خبر دیں گے، ایک ایک نیوز دیں گے اور پوری اتھینٹیکیشن کے ساتھ، پوری ان افیئر کے ساتھ آپ کو ایک ایک پاکستان کے اندر معاملات جو چل رہے ہیں آل اکراس دا ورلڈ جو معاملات چل رہے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ کو ساری ایک پوری خبر دیں گے اور آپ کو اطلاع کریں گے کیا اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر اب ہم معاملات کی طرف چلیں، دیکھیے اب پاکستان کے اندر آگے کے بجٹ، اب پاکستان کے اندر جو اس سال کا جو بجٹ ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے گا، لیکن سب سے بڑا سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ غریب انسان کو، غریب عوام کو کیا ملے گا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ غریب عوام کو، غریب انسان کو اس بجٹ سے، پاکستان کے بجٹ سے کیا ملے گا۔ خبریں آ رہی ہیں کہ تیاری کر لو پاکستانیوں، تیاری کر لو پاکستانیوں، یہ میں نے عید الاضحیٰ سے پہلے بھی خبر دی تھی اور عید الاضحیٰ کے بعد اب میں پھر آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں تیاریاں کر لو، کیونکہ میری غریب عوام کے اوپر اور بہت زیادہ جا رہا ہے، میری غریب عوام کے اوپر اور بہت زیادہ جائے گا، وہ اور سب کو مہنگائی کا بوجھ، مہنگائی غریب عوام کی اور مزید کمر توڑی جائے گی ان کے اوپر، اور ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھرپور انہوں نے کوششیں مکمل کر لی ہیں، انہوں نے بجٹ پاکستان کا تیار کر لیا ہے اور آئی ایم ایف کے جوتے پالش کرنے والے، آئی ایم ایف کے جوتے چاٹنے والے وہ اب غریب عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ گرانے جا رہے ہیں۔ میں اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، غریب عوام کو کہنا چاہتا ہوں، پوری مڈل کلاس عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری مکمل کر کے دیکھ لو، اب یہ پوری مڈل کلاس کی عوام، یہ غریب عوام اب مہنگائی کے بوجھ کے نیچے آنے والی ہے۔ جو دعوے کرتے تھے 3 سال پہلے کہ عمران خان کو جیل کے اندر ڈال کے ملک کے اندر ہم استحکام لائیں گے، ملک کو آگے لے کے جائیں گے، ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، وہ اب سیاسی استحکام کے باوجود یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ آئی ایم ایف سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ قبول کیا جاتا تو آج جو مہنگائی غریب عوام کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، مڈل کلاس کے لوگوں کے اوپر گرائی جا رہی ہے، وہ مہنگائی آپ پاکستان میں سے ختم ہو جاتی، ہمیں آئی ایم ایف کی جانب جانا نہیں پڑتا، ہمیں آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ، اس قوم کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کر لیا جاتا، اس کو اگر سر آنکھوں پہ رکھا جاتا تو یہ خاتمہ ہو جاتا، یہ بھیک مانگنے کا خاتمہ ہو جاتا اور یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا۔ لیکن اب پاکستانیوں تیاریاں مکمل کر لو کیونکہ بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ سے غریب عوام کی کمر توڑی جائے گی۔ میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاریاں مکمل کر لو کیونکہ اب بجٹ آنے والا ہے اور یہ بجٹ اس غریب عوام کی کمر توڑے گا، غریب عوام کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھرپور کوشش کر لی گئی ہے۔ یہ آپ میری ادھر سے بات سنیں، یہ غریب جو بڑے طبقے میں بیٹھے ہوئے تھے، جو بڑے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم اپنے کپڑے بیچ دیں گے اور اپنی عوام کو سستا، سب کو سستا دیں گے، سب کو پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ اب پاکستانیوں آپ دیکھے آپ کو دیکھے گا، آپ کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اب مہنگائی کا جو بوجھ ہے، وہ اس کی جو گرفت ہے وہ اوپر جانے والی ہے، مہنگائی اور ہونے والی ہے، مہنگائی کم ہونے والی نہیں ہے، مہنگائی اور ہونے والی ہے اور عوام کے پاس مزید بہت زیادہ جائے گا۔ میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاریاں مکمل کر لو پاکستانیوں، کیونکہ مہنگائی کا بوجھ آپ کے اوپر گرنے والا ہے، آپ کو نیچے پچھلنے والا ہے، آپ کو یہ پچھل دے گا، آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جو مہنگائی پیچھے آپ نے دیکھی ہے، اس سے ڈبل ٹرپل مہنگائی آپ آگے اب دیکھیں گے، یہ مہنگائی اب مزید بڑھنے والی ہے۔ یہ پاکستانی عوام
के ऊपर मज़ीद महंगाई गिराने जाने वाले हैं। ये जो ऊपर ना आँख जिनकी कोई औकात, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, अवाम ने 8 फरवरी को इनको मुस्तरद किया था। अब ये इनको पाकिस्तान पिछले 3 साल से इनको पाकिस्तान हवाले किया गया है और यह पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो इन्होंने अपनी जो तनख्वाहें, अपनी जो पैसे हैं उसकी लिमिट बढ़ा दी है। जो कौमी असम्बली के अंदर MNA MPS बैठते हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में, अपने पैसों के अंदर, अपनी नौकरियों के अंदर इजाफा कर दिया, अपने पैसों के अंदर इजाफा कर दिया है। अपने पैसों को लाखों रुपयों से बढ़ा के करोड़ों रुपए कर दिए। और जहाँ गरीब आवाम को यह हक मिलना चाहिए था, गरीब आवाम के टैक्सों के ऊपर ये जो मज़े करते हैं, आज इन्होंने गरीब आवाम को कोई हक नहीं दिया। गरीब आवाम को इन्होंने कुचल के रख दिया और इन्होंने फैसला कर लिया कि हमने गरीब आवाम को कुचल के रखना है। जो पाकिस्तान के अंदर बजट पेश करने जाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर गरीब आवाम की कोई अहमियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। इस गरीब आवाम की अगर पाकिस्तान के अंदर अहमियत और औकात होती तो यह आज ये मुल्क आगे बढ़ा होता, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होता। लेकिन आज यहाँ इन्होंने बजट पेश करने जा रहे हैं, इन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने गरीब आवाम को दवार के साथ लगाना है, गरीब आवाम को हमने तबाह बर्बाद करना है, मिडिल क्लास के लोगों को हमने तबाह बर्बाद करना है, उनके हकूक़ नहीं देने, उनके आइन नहीं देना, उनका हकूक़ नहीं देना। और ये जो अपनी तनख्वाहों में, अपने पैसों के अंदर इन्होंने इजाफा कर दिए। जो MNAs MPS कौमी असम्बली के अंदर बैठे हैं, वज़ीर आज़म हो, कौमी असम्बली का स्पीकर हो, जो भी मेंबर बैठा हुआ है, MNA MPA वज़ीर बैठा हो, उसने अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवा लिया, अपने पैसों में इजाफा करवा लिया। अब इनको आला पैसे मिलेंगे। इनको जो इनके पैसे कम थे, अब इनके पैसों के अंदर इजाफा कर दिए गए। इन वज़ीरों के, इन प्राइम मिनिस्टर के, इन स्पीकर के पैसों के अंदर इजाफा कर दिए गया। और गरीब आवाम को इस बजट से कुछ ही मिलेगा। जो बजट पेश होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, गरीब आवाम को दवार के साथ लगाने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालने की मुकम्मल तैयारी इन्होंने कर ली है। और अब बजट कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा और इस गरीब आवाम के लिए उस बजट के अंदर कोई रिलीफ नहीं है। और ये आप देखिए कि KPK के अंदर, जो कौमी असम्बली के अंदर, KPK की असम्बली के अंदर बजट पेश करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। आपको मैंने ईद उल अज़हा से पहले इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर से 2 महीने बाद मुलाकात की थी, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी थी कि मेरे मिलने के बगैर आपने बजट मंजूर नहीं करवाना। मेरे मिलने के बगैर जो KPK का वज़ीर ख़जाना है और जो KPK का CM है अली अमीन गंडापुर, उससे इमरान खान से मुलाकात की थी। और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और वज़ीर ख़ारजा है KPK का जो मामलात वगैरह देखता है, बजट जिसको पेश कराना है, एग्रीमेंट करना है, टिक लगाना है, एक्सेप्ट करना है बजट को, उसको इमरान खान ने हुक्म दिया था कि मेरी मुलाकात के बगैर आप ये बजट पेश नहीं करेंगे। लेकिन अब ये बजट अगले 2 से 3 दिन के अंदर KPK की असम्बली के अंदर पेश किया जा रहा है। ये PTI की लीडरशिप की असल औकात है, ये असल वैल्यू है। ये इमरान खान के हुक्म को अपनी जूती की रोन पर रखते हैं। आज जो CM KPK के बन के बैठे हुए हैं, वज़ीर ख़ारजा बन के बैठे हुए हैं, आज ये इमरान खान के नाम के ऊपर बन के बैठे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर की आप ये देखें, अली अमीन गंडापुर जो KPK का वज़ीर ख़ारजा है, जो मामलात वगैरह देखते हैं, जिससे बजट को कबूल करवाना है और असम्बली के अंदर पास करवाना है, KPK की असम्बली के अंदर ये पास कराएगा। इमरान खान ने इनको हुक्म दिया था 2 महीने बाद, जब इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई थी, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हुक्म दिया था। और जो KPK का वज़ीर ख़ारजा है, जो इस मामलात को देखेगा और बजट को KPK की असम्बली के अंदर मंजूर करवाना है, उसको इमरान खान ने हुक्म दिया था कि आप जब तक मुझसे मुलाकात नहीं करेंगे, आपने ये बजट कबूल नहीं करना। बजट को KPK की असम्बली के अंदर आपने पास नहीं करवाना जब तक कि मुझे नहीं दिखाया जाएगा, मुझसे मुसावरात नहीं होगी, मुझसे मुज़ाकरात नहीं होंगे बजट के मामले के ऊपर। आप ये बजट को मंजूर नहीं करवाना, आप पीछे आ जाना, आप मना कर देना, आप एब्सोल्युटली नॉट कह देना। लेकिन अब ये बजट KPK की असम्बली के अंदर पेश होने जा रहा है। इमरान खान के हुक्म को इन्होंने जूती की रोन पर रखा है। ये इनकी औकात क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। इमरान खान के नाम के ऊपर ये CM KPK बन के बैठे हुए हैं, इन्होंने कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए, इनकी औकात, इनकी वैल्यू ये। और ये इमरान खान के हुक्म को जूती की रोन पे रखेंगे, इनकी औकात, इनकी वैल्यू क्या। या आज जो CM KPK की बन के बैठा हुआ है अली अमीन गंडापुर, जो मुच्छर बन के बैठा हुआ है KPK की कुर्सी के ऊपर, आज ये इमरान खान के नाम के ऊपर बन के बैठा हुआ है। अगर आज ये नून लीग का बंदा होता या नून लीग की पार्टी से इसका ताल्लुक होता तो आज इसका मुंह काला हुआ होता, आज इसकी कोई औकात, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आज जो वज़ीर ख़जाना, जो KPK का वज़ीर ख़जाना है मुज़म्मिल असलम, जो बन के बैठा हुआ है, आज इसकी कोई औकात, इसकी वैल्यू नहीं होती। अगर ये मुस्लिम लीग नून
या पीपल पार्टी से इसका ताल्लुक होता। ये आज वजीर ख़ारजा बन के KPK का या किसी सूबे का बन के नहीं बैठा होता। आज ये कहीं झाड़ू पोछा कर रहा होता। इमरान खान के नाम की वजह से आज इनको बड़े बड़े ओहदे मिले हुए हैं। ये MNA MPA बन के कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने इमरान खान से धोखेबाजी की है। इमरान खान के पेट के अंदर इन्होंने छोड़ा कोंपा है। ये इनकी असल औकात, ये इनकी असल वैल्यू है। इमरान खान इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, और अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये 24 करोड़ आवाम भी इनको तबाह और बर्बाद कर देगी, इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, इनको अपनी झूठी की रोन पे रखेगी। अब अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी है कि जब बजट को पेश करने से पहले KPK की असेंबली में बजट को पेश करने से पहले आप जाएं इमरान खान के पास ये बजट पूरा लेके जाएं जो KPK की असेंबली के अंदर आपने इसको कबूल करवाना है, इसको पेश करना है। क्योंकि इमरान खान ने 1 महीने पहले जब इमरान खान की अली अमीन गंडापुर से अडेला जेल के अंदर मुलाकात हुई थी, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और जो वज़ीर ख़जाना है, वज़ीर जो देखने वाले बजट को देखने वाले मामलात को मुजम्मिल असलम है, उनको कहा था कि आपने ये बजट को कौमी KPK की असेंबली में जब तक मंजूर नहीं करवाना, जब तक आपकी मुझसे मुलाकात ना हो जाए, और जब तक मैं इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं दे दूँ, जब तक मैं इसको टिक नहीं लगा दूँ और आपको परमिशन नहीं दे दूँ, आपने ये बजट KPK की असेंबली के अंदर कबूल नहीं करवाना। इसके अंदर इन्होंने गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालने के लिए बहुत कुछ इन्होंने डाला होगा, और KPK को इन्होंने थोड़ा दिया होगा, उसको थोड़ा कूक दिया होगा, जिसको आपने कबूल नहीं करवाना जब तक आपकी मुझसे मुलाकात हो जाती। लेकिन अली अमीन गंडापुर अब अपनी अटकंडों पे आके अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के हुक्म की नाफरमानी करते हुए अब ऑर्डर दे दिए कि KPK के अंदर ये बजट को मंजूर करवाया जाएगा बगैर इमरान खान की परमिशन के, बगैर इमरान खान की मुलाकात की। लेकिन ये सोशल मीडिया अली अमीन गंडापुर के पीछे लगे और सोशल मीडिया के पाए इस बजट को नामंजूर का एक ट्रेंड बनाया जाए कि ये बजट को नामंजूर किया जाएगा जब तक इमरान खान की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात नहीं हो जाती, और ये बजट का मामला इमरान खान से इसकी मुसावरत या परमिशन नहीं दी जाती इमरान खान की जानिब से, ये बजट KPK की असेंबली के अंदर ना मंजूर करवाया जाए। ये KPK के अंदर जितने भी MNA MPA जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान के हुक्म के ऊपर यकीनदारी करें, इमरान खान के हुक्म के ऊपर वो फरमादारी करें और इमरान खान का हुक्म माने। जब तक इमरान खान से इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, ये बजट मंजूर ना करवाया जाए, KPK की असेंबली के अंदर इसको पास नहीं करवाया जाए। और ये अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान के नाम लेके, इमरान खान का वोट बैंक लेके, इमरान खान के नाम के ऊपर ये वोट लेके CM बन के बैठा हुआ है, इसकी औकात, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है अगर ये इमरान खान का बंदा नहीं होता। अब जो ये बजट पेश किया जा रहा है कौमी असेंबली के अंदर, इसमें मैंने बात की, शुरू के अंदर मैंने बात की, दोबारा बात करता हूँ कि इसके अंदर गरीब आवाम को कोई हकूक़ नहीं मिल रहा। उनको अब कुचलने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है कि हमने गरीब आवाम को डबल ट्रिपल कुचलना है। ये डबल ट्रिपल महंगाई होने जा रही है। ये जो कहते थे कि मामला पाकिस्तान के अंदर महंगाई नीचे आ गई है, पाकिस्तान के अंदर जो GDP है सरा है वो नीचे आ गई है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो गया। ये आवाम को धोखा देने की, फ्रॉड देने की सबसे बड़ी इनकी असलियत खुल के सामने आ गई है कि ये आवाम और इस कौम को बेवकूफ़ बनाए थे, ये इस मुल्क को, इस आवाम, इस 24 करोड़ आवाम को चूंटियाँ बनाए थे, इनको अंडा डोंडा करने जाए थे, इनको चुनियाँ मुन्नियाँ के अंदर डाल लेते कि ये आवाम माई चुनियाँ मुन्नियाँ झूठ फ्रॉड के अंदर आ जाएगी और इनको पता नहीं चलेगा। लेकिन इनको क्या पता है, इस कौम को, इस आवाम को, 24 करोड़ आवाम को शऊर आ गया। ये आवाम को अब चाहिए कि वो निकले, सड़कों पर निकले अपने हकूक़ के लिए। आप देखें जो ऊपर वज़रा बैठे हुए, MNA MPS बन के बैठे हुए, फॉर्म 47 की सीटें लेके बैठे हुए, जिनको आवाम ने मुंह पे 8 फरवरी को जोरदार चमाटा मारा, इनको रिजेक्ट किया। लेकिन इस रियासत ने, इस निज़ाम ने इनको पाकिस्तान हवाले किया और आज ये पाकिस्तान को पिछले 3 साल से, जब से इमरान खान उठ रहा है, इमरान खान 2022 के अंदर उठ रहा था और जब से ये लेके इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये आवाम का है कि आवाम निकले, आवाम इनके ऊपर मुँह ठो चमाटा मारे, इनकी असल औकात इनको याद दिलाए कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। क्योंकि इन्होंने आवाम के साथ धोखेबाजी की है। ये बड़े जलसों में खड़े होकर कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम अपने कपड़े बेच देंगे, हम अपना सारा कुछ बेच देंगे, लेकिन आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन आज आवाम को, गरीब आवाम को, मिडिल क्लास की आवाम को कहाँ रिलीफ है। आज आवाम 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। ये आवाम के ऊपर, ये गरीब आवाम के ऊपर, ये मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर और बोझ डाले जा रहे हैं। उनको कुचलने की तैयारियाँ इन्होंने मुकम्मल कर ली है और इन्होंने अपनी तनख्वाहों में, इन्होंने अपने इजाफा कर दिया अपनी तनख्वाहों में, और ये अब अयासियाँ करेंगे फ्री आवाम के पैसों के ऊपर। ये अयासियाँ करने जा रहे हैं, अपना पेट पालने जा रहे हैं और आवाम को ये कुछ नहीं देने जा रहे हैं। इस बजट जो कौमी असेंबली के अंदर पास करवाया जाएगा, इसको मंजूर करवाया जाएगा। ये गरीब आवाम को कुचलने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं।
इन्होंने अपनी तनख्वाहों में, इन्होंने अपने पैसों के अंदर इजाफा कर दिया है, लेकिन इन्होंने गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा। गरीब आवाम को कुछ नहीं देने जा रहे, ये गरीब आवाम को दबाव के साथ लगाने जा रहे हैं, गरीब आवाम को कुचलने जा रहे हैं। जिस तरह ये पहले पाकिस्तान के अंदर वोटर आए, 75-78 सालों से वोटर आए कि गरीब आवाम को इन्होंने कोई हकूक़, कोई उनको हकूक़ वगैरह उनके नहीं दिए और उनको दबाव के साथ भरपूर लगाने की कोशिश की जा रही है। और ये गरीब आवाम के पैसों के ऊपर, टैक्सों के ऊपर ये मज़े करते हैं, ये अयाशियाँ करते हैं, एसियों में घूमते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठते हैं। गरीब आवाम के पास 24 करोड़ आवाम के पैसों के ऊपर ये अयाशियाँ करते हैं, उम्रों के ऊपर जाते हैं, सऊदी अरब दौरा करते हैं, ब्रूनेई मुल्क के अंदर दौरे करते हैं, आवाम का पैसा चोरी करके और अपने बैंकों के अंदर ट्रांसफ़र करके। ये बजट जिसको नामंजूर करवाया जाए और इसके ऊपर शोर शराबा होना चाहिए और आवाम को सड़कों पर निकलना चाहिए कि हमें हकूक़ मिलना चाहिए, गरीब आवाम को उनका हकूक़, उनका राइट मिलना चाहिए। जब तक उनके हकूक़, उनके राइट नहीं मिलेंगे, हम सड़कों के ऊपर से नहीं उठेंगे। आपको बांग्लादेशी कौम की तरह सड़कों पे निकलना पड़ेगा, आपको अपना हकूक़, अपने राइट के लिए आपको श्रीलंका की आवाम की तरह सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। आपको अपने हकूक़, अपने राइट के लिए तुर्की की आवाम की तरह अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, वरना ये आपके हकूक़ के ऊपर हमेशा की तरह इस तरह भी इस बार भी आपके हकूक़ के ऊपर छापा मारेंगे, आपके हकूक़ को जूती की रोन पे रख के उस हकूक़ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने अपने लिए, अपने राइट के लिए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। पाकिस्तानियों, ये मैं पहले भी बात करता था कि आपने अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट के लिए आपको खुद उठाना पड़ेगा, आपको खुद आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ये इमरान खान ने भी आपसे बातचीत की थी और ये मैं भी कहना चाहता हूँ कि आपने अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट के लिए आपने अपने लिए बातचीत खुद करनी पड़ेगी, शोर शराबा आपने खुद मचाना पड़ेगा, वरना आपको आपके हकूक़, आपके राइट नहीं मिलेंगे। जब तक आपको आपके हकूक़, आपके राइट नहीं मिलेंगे, जब तक आप इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। अगर आप अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपको हर हकूक़ मिलेगा, आपको हर राइट मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, जो आपका आईनी हक है, जो आपका आईनी हकूक़ है। लेकिन अगर आप चुपचाप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे रहेंगे, आपको ये आपके सारे इंसानी हकूक़, आपके सारे हकूक़, आपके सारे राइट ये आपसे छीन लेंगे और उसी हकूक़ के ऊपर, उसी राइट के ऊपर जो आपको मिलने थे, उसी राइट के ऊपर ये कब्जा करके ये अयाशियाँ करेंगे, मज़े लूटेंगे। आज ये जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े दफ्तर के अंदर एसी के नीचे बैठते हैं, बड़े आराम सुकून से फ्री माल के अंदर ये अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, फ्री माल के अंदर ये आपका पैसा चोरी करते हैं। आज हमने इनको हिम्मत दी हुई, अगर आज हम खड़े हो जाएं, सड़कों पे निकलें अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो इनकी हिम्मत, इनकी ज़रूरत ना हो कि हमारे मुल्क के ऊपर कुर्सियों के ऊपर बैठ के, इनका राइट है कि आवाम के ऊपर ये पैसा लगाया जाए जो टैक्स दिए जाते हैं गरीब आवाम की जान से। लेकिन इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है, इन्होंने अपनी पैसों के अंदर इजाफा किया है, क्योंकि इन्होंने अयाशियाँ करनी है, इन्होंने मज़े लूटने हैं, इनको अयाशियाँ करनी है, इन्होंने मज़े लूटने हैं और बाहर इन्होंने मुल्क जाना है, इन्होंने अपनी अयाशियों के ऊपर पैसे लगाने हैं, मज़े करने हैं, लूटने हैं आवाम का पैसा और इस गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाल के इसको कुचलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर आप अपने हकूक़ के ऊपर दोबारा चुप रहेंगे तो अगले साल इससे डबल ट्रिपल छोटी महंगाई होगी और आप मर जाएंगे, आप कुचल जाएंगे और इस मुल्क के अंदर आपको कोई हकूक़, आपको कोई राइट नहीं मिलेगा अगर आप अपने हकूक़, अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। ये पिछले 20 सालों से इमरान खान इसके अगेंस्ट आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस गरीब आवाम को हकूक़ को इसके राइट मिलने चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि 2019 के अंदर इमरान खान जब बजट पेश करवाने जा था, जब वो इस मुल्क का, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, इमरान खान ने जो वज़रा की, MNS की, MPS की जो तनख्वाहों में कमी कर दी थी 10%, इमरान खान ने उनकी तनख्वाहों के अंदर, उनके पैसों के अंदर 10% कमी कर दी थी। ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो अपने मुल्क की, अपनी गरीब आवाम का सोचता था, अपने वज़रा, अपने MNS, अपने MPS का, अपने कौमी असम्बली के मेंबर्स का नहीं सोचता था, क्योंकि ये पैसा आवाम का था, ये पैसा आवाम के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन ये पैसा ये अपने ऊपर लगाते हैं, ये इन पैसों के ऊपर, इन गरीब आवाम के पैसों के ऊपर, ये 24 करोड़ आवाम के पैसों के ऊपर ये अयाशियाँ करते हैं, ये मज़े करते हैं। जो हमें अपने हकूक़, अपने राइट हमें मिलना चाहिए, अपने हकूक़, अपने राइट के लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। हम कब तक चुप करके बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये हमारे हकूक़, हमारे राइट के ऊपर ये चुपचाप करके हमारे हकूक़, हमारे राइट हमसे छीनते जा रहे हैं और हम चुप करके तमसाई बने हुए हैं, फ़ैन बने हुए हैं, एक क्राउड, एक स्टैंड के अंदर बैठे हुए हैं और इनकी बड़ी अक्कड़ पक्कड़ देख रहे हैं। हमने इनकी अक्कड़ पक्कड़ सब जमा होके इस अवाम ने सड़कों पे निकल के इनकी अक्कड़ पक्कड़ को तोड़नी होगी, तबाह और बर्बाद करनी होगी। इनकी हिम्मत, इनकी ज़रूरत कि हमारे मुल्क के, हमारे पैसों के ऊपर अयाशियाँ करें, हमें इनकी अक्कड़ पक्कड़ सबको तबाह और बर्बाद करना पड़ेगा। अपने हकूक़ के लिए पाकिस्तानियों आपने आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो आपसे ये हकूक़ बार बार छीनते रहेंगे और ये बार बार छीनेंगे, आज भी, कल भी और दोबारा छीनते रहेंगे।